हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट हैं आपके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए। So if you are watching this video for the first time, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you receive the notifications of these videos as and when we post them. इससे पहले भी हम एक वीडियो में पॉलिटी के कुछ MCQs डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, डू सी दैट वीडियो एंड लेट अस नो योर थॉट्स अबाउट इट. तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के रिजल्ट की अगर हम बात करें, अभिपीडिया हैज़ स्वेप्ट the results once again. More than 28 selections we have had in the last year. और CAPF assistant commandant के एग्ज़ाम के लिए we have also launched a complete course for paper 1 as well as paper 2. और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, so for 7 days you can attend free classes. For the first 7 days totally free of cost demo classes you can attend. और अगर आपको पसंद आता है of course then you can continue, which I hope you do. So do avail of this particular offer, and for that particular offer you can message on this number 78377 73651. This is the number that you can approach for joining this particular course. 78377 73651. Right? So now let's get started with the questions of geography. First, consider the following regions of India. Number 1, Gulf of Mannar. Number 2, Gulf of Kutch. Number 3, Andaman and Nicobar Islands. And number 4, the Lakshadweep Islands. Which of the regions have coral reefs? इनमें से कौन कौन से regions में coral reefs पाई जाती हैं? 1, 2 and 4, 2 and 3, 1, 3 and 4 और 1, 2, 3 and 4. इन चारों में से of course all the 4 are islands और coastal areas. इनमें से कहाँ पे coral reefs हमें देखने को मिलती हैं? So the answer is actually all of these. इन चारों जगह पे हमें coral reefs देखने को मिलती हैं, 1, 2, 3 and 4. Right? So Lakshadweep reefs. Now, there are certain differences in the type of reefs that are found. जैसे Lakshadweep reefs are atolls and others are all fringing reefs. तो थोड़ा थोड़ा वो gap of course is there, but all of these are reefs, whether it is Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Andaman Nicobar और Lakshadweep. इनके अलावा पाक बे या पाक स्ट्रेट में भी जो कोरल रीफ्स हैं वो देखने को मिलती हैं. So all these are the correct answer. Right? So all these are the places where you find coral reefs: Andamans, Park Bay, your Lakshadweep, Gulf of Kutch, at all these places. Next, consider the following rivers: Damodar, Krishna and Mahanadi. अब ये directly drainage of India से question है. There are 3 rivers. Now you have to tell which of the following is the correct order as of the rivers as one moves from north to south. North से south जब हम move करते हैं तो इन rivers का order क्या है? दामोदर, कृष्णा and महानदी. Right? तो अगर हम मैप पे देखें तो सबसे ऊपर आपकी आती है दामोदर. Right? So here you have दामोदर, then you have Mahanadi and then you have Krishna. So दामोदर, महानदी and Krishna is the correct order. तो इसके लिए मैप की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो दामोदर, महानदी एंड कृष्णा, दैट मीन्स 1, 3, 2 इज द करेक्ट आंसर. सो डी हेयर इज द करेक्ट आंसर. राइट? सो ज्योग्राफी में व्हेन यू आर स्टडिंग इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, तो मैप के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड आपका होना चाहिए. वेदर इट इज़ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वेदर इट इज़ द ड्रेनेज ऑफ इंडिया, whether it is infrastructure, industrial location, right, the physical map जिस पे कि सारे के सारे features, plateau, plains, mountains, everything. तो ये सारी चीज़ों के लिए मैप पे बहुत अच्छी आपकी ग्रिप जो है वो होनी चाहिए. Question number 3, छोटा नागपुर plateau is called the heart of industrial area. Why? Because it is near to major iron and steel centers, because it is a big link of roads and railways, because it is rich in minerals and power fuels,
और बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। इनमें से कौन सा रीज़न करेक्ट है? छोटा नागपुर प्लेटू को हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड पावर फ्यूल्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट इंडिया में पाया जाता है। जो पहला रीज़न है, इट इज़ नियर टू मेजर आयरन एंड स्टील सेंटर्स। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि इट इज़ द अदर वे अराउंड एक्चुअली। यहाँ पे आयरन और स्टील सेंटर्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। सो इट इज़ द कॉज एंड नॉट द रीज़न, इट इज़ द इफेक्ट, सॉरी, नॉट द रीज़न। अ बिग लिंक ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, नो, इससे बेटर बहुत ज़्यादा अच्छे रोड और रेलवे लिंकेजेस वाले एरियाज़ हैं इंडिया में। और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के लिए फर्टाइल है, दिस ऑल्सो इज़ नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, which crop is generally sown to restore and maintain soil fertility? So due to continuous cropping, the productivity of soil goes down or keeps going down. तो उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाया जाता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ऑल आर देयर। तो वो कौन सी क्रॉप होती है जिससे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है या रिस्टोर किया जा सकता है? बाले, ज्वार, मेज और pulses. So leguminous crops are basically pulses. So D, pulses is your correct answer. So crops such as pulses, legume plants, white turnips, radishes and other species are rotated with cash crops to blanket the soil year round and act as a green manure. तो पूरे साल में जब repetitive cropping की जाती है तो उसमें एक क्रॉप जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप लगाई जाती है, सो दैट द सॉइल फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कॉज रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेट वेयर? तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल होती है, नॉर्थ वेस्ट में रेनफॉल होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, यूराल सी और मेडिटेरेनियन सी। लुक, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इंडिया के वेस्टर्न साइड से मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी ही इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, बट द करेक्ट आंसर हेयर इज मेडिटेरेनियन सी, विच इज सैंडविच्ड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। तो मेडिटेरेनियन सी से जो विंड्स हैं वो मॉइस्चर कैरी करके लेके आती हैं एंड दे डू रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होता है एंड ब्रिंग्स सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये नॉन मॉनसूनल रेनफॉल होती है बिकॉज मॉनसूनल रेनफॉल मोस्टली इज फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जुलाई, फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जून टिल सेप्टेम्बर, लेकिन ये वाली जो रेनफॉल है जनरली विंटर्स में होती है एंड इट इज़ ड्रिवन बाय द वेस्टर्लीज। तो वेस्ट से जो विंड्स आती हैं दे ब्रिंग दिस मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस इज हाउ इट हैपन्स। क्वेश्चन नंबर 6, the rains along the western coast of India, the rains along the western coast of India, western coast यानी कि ये कोंकण कोस्ट की बात हो रही है, the coast from गुजरात till let's say केरला। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो रेनफॉल होती है वो किस तरह की रेनफॉल है? इज इट साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और मॉनसूनल? चारों अलग अलग तरह की बारिश होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जो साइक्लोन की वजह से होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल मोस्टली इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड होती है बिकॉज साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे तो साइक्लोनिक रेनफॉल ऑलमोस्ट नहीं होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है जो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जो माउंटेन्स की वजह से होती है, लाइक द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर कमिंग फ्रॉम वन साइड, तो माउंटेन से टकरा के ये ऊपर को उठती हैं, तो व्हेन दे गो अप दे रीच सैचुरेशन पॉइंट एंड द रेनफॉल हैपन्स। एंड मॉनसूनल रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ मॉनसून। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। Orographic means the one that is induced by
माउंटेन्स, जिनमें हाइट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर कम होता है और सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जिसकी वजह से वो बारिश जो है वो हो जाती है. So it is caused when masses of air are forced up the side of elevated land formations such as large mountains, right? तो एक slope की वजह से ये ऊपर उठती हैं. The lift of the air up the side of the mountain results in adiabatic cooling and ultimately condensation and precipitation. So every molecule of sand has the capability to hold some moisture or some water onto it. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है और लैप्स रेट की वजह से वो मॉइस्चर जो है वो इट हैज़ टू लूज दैट मॉइस्चर, जिसकी वजह से वो बारिश होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल. और वेस्टर्न कोस्ट पे ये इसलिए हो पाता है बिकॉज द विंड डायरेक्शन एंड नंबर 2 बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स की स्लोप्स के पास आकर जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो जैसे ही ऊपर को उठती हैं उनका टेम्परेचर कम होता है एंड रेनफॉल हैपन्स. दिस इज called orographic rainfall. Next, Mohorovic discontinuity is found between what? Now this is a question from geomorphology, यानी कि अर्थ फॉर्मेशन. तो जियोमॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि अर्थ की जो लेयर्स हैं, मैंटल, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, इन तीनों के बीच में कुछ कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जिनको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. सो इनमें से मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी इनमें से कौन कौन सी लेयर्स के बीच में मिलती है हमें? क्रस्ट एंड मैंटल, मैंटल एंड कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर, या फिर इनर मैंटल एंड आउटर मैंटल. तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं. सो दिस इज द डिपिक्शन ऑफ ऑल दीज लेयर्स. सबसे पहले आपकी आती है क्रस्ट और मैंटल के बीच में जो है दैट इज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी. फिर अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में रेपिटाई डिसकंटिन्यूटी. मैंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. सो मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल. सो योर आंसर वुड बी ए, क्रस्ट एंड मैंटल. ये सारी डिसकंटिन्यूटीज आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट, नागा हिल्स. नाउ दिस इज फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. अगेन, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली आंसर अगर आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया अच्छे से पता है. सो द नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? नागा हिल्स कौन सी दो कंट्रीज में जो है वो वाटरशेड बनाती हैं? एक तरफ तो इंडिया हो गया, दूसरी तरफ क्या? चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश. Now Naga Hills, if you know the map of India, Naga Hills are in Nagaland. So they form the watershed between India on one hand and Myanmar on the other hand. So the answer is B, Myanmar. Question number 9. Teesta forms a part of which major river system? Directly a question from India's drainage system, right? So this is, I think, the second question or third question from India's drainage. So drainage, physical geography, you know, all these are important areas from map point of view. तो तीस्ता इनमें से किस रिवर सिस्टम का पार्ट है? गंगा, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र. नाउ इफ यू हैव आइडिया ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, you know, so roughly if this is the map of India, roughly, तो तीस्ता जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है, लाइक वेस्ट बंगाल वाली साइड तीस्ता फ्लोज, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उस तरफ. सो ऑफ कोर्स गंगा कैन नॉट बी, कृष्णा कैन नॉट बी द आंसर, कावेरी कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज कृष्णा, कावेरी साउथ इंडियन रिवर्स हैं. गंगा flows from like here and Brahmaputra flows from here. So it is a part of the Brahmaputra river system. See, these such type of questions आपको याद नहीं करने होते. You just have to put pressure on your picture memory, your pictographic memory. वहाँ से ये question आपको solve होंगे. So Brahmaputra river system का ये एक part है. In Bangladesh, the Brahmaputra is joined by Teesta river. So Teesta river flows from your West Bengal into Bangladesh. Right? So this is the map of Teesta river.
राइट. सो एक तरफ भूटान है, एक तरफ यू हैव नेपाल. तो सिक्किम से आती है, वेस्ट बंगाल एंड देन इनटू बांग्लादेश. Last question, the mountain pass Nathula is located in. Now this is not exactly a static GK question, ये current से इसका idea लिया गया है, but you should know about the famous passes. There are around 20 to 30 important passes that you should know about. So pass is like an area in between the mountains from where you can pass from one to the other part. You know, it's like a valley in between high mountains through which you can pass. सो नाथुला पास कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर. नाउ दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. इफ यू नो इट, you know it, otherwise you cannot guess it. So Nathula is in Sikkim. Nathula is in Sikkim. It's a pass between India and Tibet or India and China you can say. तो ये कुछ important passes हैं नॉर्थ ईस्ट के. So here you have Nathula and this is Sikkim. कुछ और important passes हैं जैसे जेलेपला, then you have Difula, Yonglapla, right? These are some important passes in north east. इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, इनमें बहुत important passes हैं जैसे कि your लिपू लेक पास, your then you have सरचूला पास. There are so many important passes जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. So the answer is Sikkim, right? So that is it for this particular session. So again I would reiterate that if you want to join our complete course for paper 1 and 2 for the CAPF Assistant Commandant, then you can contact on this particular number, which is 783777 73651, and you can avail 7 days of free demo classes as a trial. That is all for this session. Thank you so much and take care.